میرا نام ظفر ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں ایک چھوٹی سی دکان میں کپڑے بیچتا تھا۔ وہ دکان کرائے پر تھی لیکن کافی اچھی چل رہی تھی اور کافی گاہک آتے تھے اور میں بھی بہت تجربے کار تھا۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی ذرا ریشمی کپڑے دکھا دے۔ اس کی بات سن کر مجھے برا لگا کیونکہ میں تو اس کے بیٹے کی عمر کا ہوں گا۔ کافی ہٹی کٹی تھی، شاید اسی وجہ سے مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسے چھوڑ کر باقی گاہکوں کو کپڑا دکھانے لگا۔ وہ بولی، دیکھو بھائی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں تم سے کب سے کپڑا مانگ رہی ہوں، مگر مجال ہے جو میری بات پر کان دھرو۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں دکھانا تو بتا دو تاکہ میرا وقت برباد نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ میں نے اپنا منہ بس سوڑا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت میرے محلے کی ہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن شازیہ خالہ نے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی کے لیے درزن کو کپڑے دینے جانا ہے اور مجھے انہیں وہاں لے جانا ہے۔ شازیہ خالہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے میں ہی ان کے گھر کے کام کرتا تھا۔ میری کزن کی شادی ہونے والی تھی مگر میں نے دیکھا کہ خالہ کی بیٹی زیادہ خوش نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک نہیں تھی، شاید وہ کسی کو پسند کرتی تھی۔ خیر، میں کون ہوتا تھا اس سے یہ سوال کرنے والا؟ بہرحال مجھے یہ صورتحال اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اداس رہتی تھی۔ میں کپڑے لے کر خالہ کو ساتھ لے کر درزن کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میری حالت غیر ہو گئی کیونکہ درزن وہی عورت تھی جو اس دن میری دکان پر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ بھی ہوا کی طرح اڑ گیا تھا۔ میں فوراً باہر چلا گیا۔ جب خالہ تھوڑی دیر بعد آئی تو کہنے لگی، ظفر، کپڑے تو میں نے دے دیے ہیں لیکن تم نے گھر دیکھ لیا تو تم ایسا کرنا، 3 دن بعد جا کر خود ہی کپڑے لے آنا۔ خالہ کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ میں اس دن درزن کے پاس کیسے جاؤں گا۔ 3 دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ خالہ نے خود یاد دلایا کہ ظفر، کیا تم کپڑے لے آئے ہو؟ ان کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ مجھے درزن کے پاس جانا ہے۔ جیسے ہی میں ان کے پاس گیا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا، ہاں بتاؤ ظفر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم شازیہ کے بھانجے ہو، لیکن تم نے اس دن اچھا نہیں کیا تھا۔ میں بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا۔ کیا میں ان سے دل کی بات کہہ دوں کہ میں نے ان کے ساتھ کیوں صحیح طریقے سے بات نہیں کی تھی؟ میں نے فوراً کہا، دراصل آنٹی، میں سب کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتا، لیکن اس وقت آپ نے مجھے بھائی بنا لیا تھا۔ میں کہاں سے آپ کا بھائی لگتا ہوں؟ میں تو آپ کے بیٹے کی عمر کا ہوں گا۔ درزن نے میری بات سنی تو وہ شرمندہ ہو گئی، کہنے لگی، اچھا، مجھے معاف کر دو۔ دراصل میں جس دکان پر بھی جاتی ہوں وہاں سب کو اپنا بھائی بنا لیتی ہوں۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے درزن سے وہ سارے کپڑے لیے اور اس سے کہا، آپ دوبارہ میری دکان پر ضرور آئے گا، میں آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ کچھ دن بعد درزن میری دکان پر آئی اور مختلف قسم کے کپڑے خریدے۔ میں نے اس کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا۔ اس کے بعد میری دکان پر بہت اچھی سیل ہوئی۔ میں درزن کے گھر بھی جانے لگا، خصوصاً جب میری کزن کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ درزن کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلے ہی گھر کو چلاتی ہے اور لڑکیوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتی ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تبھی میں نے درزن سے کہا، کیا ہوا؟ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن میں آپ کے گھر کے سارے کام کر دیا کروں گا۔ تبھی میں نے درزن سے کہا، کیا ہوا؟ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن میں آپ کے گھر کے سارے کام کر دیا کروں گا۔ اگر آپ کو میری ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ درزن بہت خوش ہو گئی۔ وہ ویسے بھی خالہ کی بہت اچھی دوست تھی۔ خالہ نے بھی درزن کے سامنے میری کافی تعریفیں کی تھی۔ یوں درزن میری خالہ کے گھر بھی جاتی رہتی تھی۔ شادی کی تیاریوں کی وجہ سے اماں پہلے ہی خالہ کے گھر چلی گئی تھی اور میں بھی اماں کے ساتھ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی کزن فاطمہ کو دیکھا، وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی اداسی کی اصل وجہ کیا ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کی بات پکی ہوئی تھی، اماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ دیکھو، اس کے سسرال والے بہت حساس ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے تکلفی کی وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جتنا ہو سکے تم اس سے دور رہو۔ اماں کی بات مانتے ہوئے میں نے فاطمہ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اس کے لیے مشکل بناتی، ورنہ فاطمہ اور میری گہری دوستی تھی اور ہم دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ لیکن اب جب میں فاطمہ کو اداس دیکھتا تو مجھے بہت پریشانی ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ خالہ نے پیسہ دیکھ کر ہی اس کی شادی اس خاندان میں کر دی ہے اور فاطمہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ایک دن جب مجھے موقع ملا، اماں اور خالہ شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی تھی اور فاطمہ گھر پر تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا، میں نے دیکھا فاطمہ اکیلی تھی اور کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے میری موجودگی کا احساس ہی نہیں کیا اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، لیکن فاطمہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو، کسی کو بھی مت بتانا۔ ہاں، یہ سچ بات ہے کہ میں حسن سے محبت کرتی ہوں، حسن کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اماں نے میرا رشتہ زبردستی اسد سے پکا کر دیا ہے۔ اسد میں کیا رکھا ہے؟ نہ رنگ ہے، نہ روپ،
बस अच्छा कमाता है, तो अम्मा ने ये देखकर रिश्ता उसके साथ कर दिया है। अब मैं सारी जिंदगी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। अम्मा मेरी बात समझती ही नहीं है, लेकिन प्लीज अम्मा को मत बताना कि मैं हसन से मोहब्बत करती हूँ। हसन मुझसे आखिरी दफा मिलना चाहता है और वो मुझसे यही कह रहा है कि शादी से पहले मैं उसके पास आऊं ताकि वो मेरी मोहब्बत को महसूस कर सके। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैंने ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। घबराहट में मैंने सारी सच्चाई खुद ही जान ली। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने फातिमा को समझाया, नहीं फातिमा, ऐसा मत करो। हसन से मिलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर तुम अपना आप पहले ही हसन को सौंप दोगी तो फिर असद को क्या दोगी? अपनी जवानी असद के लिए संभाल कर रखो। फातिमा ने कहा, नहीं, मैंने सारी जिंदगी अपनी जवानी हसन के लिए संभाल कर रखी थी। मैं तभी अपना ख्याल रखती थी ताकि हसन को ये अमानत दे सकूं। उस पर सिर्फ हसन का ही हक है। मैं असद के पास नहीं जा सकती। हत्ता कि अगर मेरी उससे शादी भी हो गई तो मैं अपना वजूद उससे दूंगी, लेकिन मेरी रूह में तो हसन होगा। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने फातिमा को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फातिमा बहुत खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग और लंबे बाल उसे बहुत पुरकशिश बनाते थे। शादी की वजह से उस पर जो निखार आ रहा था वो आला दर्जे का था। फातिमा उस वक्त जवान और खूबसूरत लड़की थी और अपनी शक्लो सूरत और जिसामत की वजह से वो मुझसे काफी साल छोटी लगती थी। उसका जिस्म भी काफी भरा हुआ था। शायद ये शादी का असर था। जोश पुरनुमाया थे, पर फातिमा अपनी तमाम जवानी हसन को देने पर बाजिद थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्यों कर रही है। मैंने उसे काफी समझाया कि मैं नहीं चाहता कि हसन जैसे बदमाश लड़के के पास वो जाए और अपना सब कुछ उसे सौंप दे, क्योंकि मैं जानता था कि आजकल के हालात कैसे हैं। मैं नहीं चाहता था हसन उसका फायदा उठाए। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फातिमा रुकने को तैयार ही नहीं थी। अगर मैं उस पर गुस्सा करूंगा या उसे धमकाऊंगा तो शायद वो रुक जाएगी। मैंने वैसा ही किया। मैंने कहा, फातिमा, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, वरना मैं खाला को हसन के बारे में बता दूंगा। मेरी बात सुनकर फातिमा डर गई। कहने लगी, प्लीज ऐसा मत करो, तुम भी तो किसी से मोहब्बत करते होगे। अगर तुम अपने महबूब से ना मिले तो क्या तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगे? प्लीज इस तरह मत करो। अगर कोई तुम्हारे साथ ये सब करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? फातिमा ने मुझसे कहा कि मेरे जज्बात सिर्फ हसन के लिए हैं। अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं उसके साथ जाऊंगी। मैंने उसे समझाया, अगर हसन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया और तुम्हारी वीडियो बना ली तो फिर क्या होगा? फातिमा ने कहा, प्लीज इस बात का किसी को भी मत बताना। तुम्हें तो उल्टा मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम मेरे लिए मुश्किलात बढ़ा रही हो। याद है बचपन में हम एक साथ होते थे, तुम भी तो एक लड़की से मिलते थे। क्या तुम उसको भुला चुके हो? मुझे भी इसी तरह हसन से मोहब्बत हो गई है। प्लीज मेरी बात मान लो और मेरी मदद कर दो। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं उसे हसन के पास ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि मैं उसके साथ ही रहूंगा ताकि हसन कहीं छुपकर उसके साथ कुछ गलत ना करे और उसका फायदा ना उठा सके। ये सुनकर फातिमा ने शर्त मान ली और कहने लगी, तुम उस कमरे में बेशक छुप जाना। फिर मैं फातिमा को अम्मा से छुपकर हसन के घर ले गया। वो एक स्टोर रूम में गई और मुझे कहा कि मैं बिस्तर के पीछे छुप जाऊं। मैंने बिस्तर के पीछे छुपकर हसन का इंतजार किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। फातिमा हसन के साथ लिपट गई और कहने लगी, बहुत मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ, चलो अब जल्दी करो। आखिरी दफा हम एक दूसरे को महसूस तो कर लें, उसके बाद हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। हसन ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा ये वजूद किसी और के पास होगा। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि ये वजूद मेरा होगा, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। वो फातिमा को हर जगह से महसूस कर रहा था। कभी वो उसे छेड़ रहा था और कभी उसकी कमर के नीचे से हाथ डाल रहा था। मैं ये सब देख रहा था और मेरे जज्बात भी मचल रहे थे। हसन कभी उसे अपने पास बुलाता, कभी उसे महसूस करने की कोशिश करता। कुछ देर बाद फातिमा की हालत देखकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मैंने पहली दफा ये सब कुछ देखा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं, लेकिन मैंने खुद को काबू किया। वो लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं हसन की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने जल्दी से फातिमा की वीडियो बना ली जिसमें वो हसन के साथ वो सब कुछ कर रही थी। वीडियो बनाकर मैंने मोबाइल अपनी जेब में रखा और कुछ देर बाद वहां से चला गया। फातिमा ने अपने कपड़े पहने और जल्दी से सेट हो गई। फिर मुझे बुलाया और कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमने ये सब कुछ देख लिया है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, पर अब तुमने ये सब कुछ देख लिया है तो इसे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाना। मैं नहीं चाहती कि कभी तुम उसे याद करो।
हसन से मेरी आखिरी मुलाकात थी जो कि अब हो चुकी है। अब तो तुम्हें भी यकीन आ गया होगा, हसन मुझे सच में चाहता था। अगर हसन के दिल में कोई ऐसी बात होती तो यहाँ कैमरे लगा देता, लेकिन देखा ही होगा यहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं अभी भी यही सोच रहा था कि कैसे मैं फातिमा को अपने लिए तैयार करूं। जब से मैंने उसे वो करते हुए देखा था, मैंने यही कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो मेरे पास आ जाए। शादी में 3 दिन बाकी थे, हर कोई खुश था, फातिमा भी खुश थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने अपना वजूद हसन को सौंप दिया है। अब उसके साथ कुछ भी हो, उसे कोई परवाह नहीं थी। एक रोज जब फातिमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, मैं उसके पास चला गया। उसने आंखें खोली और कहा, क्या हुआ, कोई काम है? मैंने कहा, हाँ, एक बहुत अहम काम है। मैंने जल्दी से कमरे की कुंडी लगाई ताकि कोई अंदर ना आ सके। रात भी काफी हो चुकी थी और सब सो चुके थे, तो हम दोनों को यहाँ कोई नहीं देख सकता था। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन था। फिर फातिमा ने पूछा, क्या काम है? कहीं हसन ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, या कुछ और हो गया है? वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे रोक भी सकती हो। फातिमा ने मेरी बात सुनी तो घबरा गई। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और वो वीडियो सामने रख दी जिसमें वो बिल्कुल वाज़ेह थी और हसन उसके साथ था। कोई भी उस वीडियो को देखकर अपने जज्बात को सुकून दे सकता था। फातिमा ने वीडियो देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ये वीडियो कहाँ से आई? मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ से आई, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हसन ने वहाँ कैमरे लगा रखे थे, जो कैमरे नजर नहीं आ रहे थे। मैंने उस कैमरे को तलाश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने नहीं आया। लेकिन ये वीडियो मुझे मेरे दोस्त ने भेजी है। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि ये वीडियो कहाँ कहाँ जा सकती है। मेरे दोस्त को बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मेरी कजन हो। उसने बस ये वीडियो मुझे खुश करने के लिए भेजी है, लेकिन अगर ऐसी एक और वीडियो बन जाए तो शायद मेरा दोस्त उसे डिलीट कर सकता है। मेरी बात सुनकर फातिमा हैरान हो गई। उसने कहा, अगर ये वीडियो पूरे खानदान में फैलती है तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मेरी तो परसों शादी है, मैं क्या करूंगी? मैंने कहा, मेरा दोस्त एक ही बार में अगर चाहे तो वीडियो डिलीट कर सकता है, जब मैं उससे बताऊं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर फातिमा की पैरों तले से जमीन निकल गई। जफर, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने दोस्त को कैसे यकीन दिलाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ लगते हैं? उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, अगर हम दोनों एक वीडियो बना लें और उसे अपने दोस्त को भेज दें तो शायद उसे यकीन आ जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर वो वीडियो डिलीट भी कर देगा, वरना तो वो वीडियो लोगों को भेज भेज कर खूब पैसा कमाएगा, क्योंकि उसका यही काम है। फातिमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने कहा, भला मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारा दोस्त है, फिर भी अगर वो वीडियो डिलीट ना की तो फिर मैं क्या करूंगी? मैंने उससे बताया, वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो मेरी खातिर ये वीडियो जरूर डिलीट करेगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन ये सबूत भी होना जरूरी है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वरना वो मुझसे सबूत मांगेगा। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना पर मैं वो वीडियो डिलीट करवा सकूं। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया था। अब वक्त बहुत कम है, अगर तुम चाहती हो कि वो वीडियो डिलीट हो जाए तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। मैं भी बहुत मजबूर हूँ, वरना मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। फातिमा बहुत परेशान हो गई थी। वो दिल से मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी के तहत उसे मेरे साथ ये सब करना पड़ा था। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरा झूठ कामयाब हो गया था। उसके साथ ये सब करने के लिए मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला था। मैं भी मजबूर था, लेकिन मैं इतना जान गया था कि फातिमा के लिए ये सब करना मुश्किल नहीं है। अगर वो हसन के साथ ये सब करने पर राजी हो सकती है तो वो मेरे साथ भी हो सकती है। कुछ देर बाद वो बेड पर लेट गई और यूं मैंने अपनी सारी दिली ख्वाहिश पूरी कर ली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और इस तरह मैंने फातिमा को कह दिया कि अब मैं ये वीडियो अपने दोस्त को भेज दूंगा और फिक्र मत करो, अब तुम खुशी खुशी अपनी शादी के फंक्शन को एंजॉय करो, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर चला गया था। वो मेहंदी वाली रात बहुत ज़्यादा बेचैन थी। मुझे लग रहा था कि फातिमा उससे फिक्र में है कि कहीं उसकी वीडियो लीक ना हो जाए। रात को जब फातिमा ने मुझे इशारा किया, मैं दर्जन आंटी से बातें कर रहा था। वो मेरे साथ बहुत गपशप लगा रही थी। जब मैंने फातिमा को देखा, वो इशारे करके कमरे में आने का कह रही थी। दर्जन ने भी वो इशारा देख लिया था और कहा कि तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है, सब ठीक तो है ना? मैंने दर्जन को बताया कि फातिमा मेहमानों के बारे में पूछ रही है और फिर मैं फातिमा के पास चला गया। फातिमा फौरन कहने लगी, हम दोनों ने कल रात जो किया था, तुमने वो वीडियो अपने दोस्त को तो भेज दी थी ना? क्या उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है या नहीं?
वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा फातिमा वो सब भूल जाओ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा और वो सब किया। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, हम दोनों के एक दूसरे के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरियां भी इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं। मैंने वो वीडियो अपने दोस्त को भेज दी है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब तुम खुशी खुशी अपना फंक्शन एंजॉय करो। फातिमा अब बहुत खुश हो गई थी, मुझे गले लगाकर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सारा मसला हल कर दिया, मैं तुम्हें सारी जिंदगी याद रखूंगी। जब मैंने फातिमा को देखा वो वापस चली गई, पर जैसे ही मेरी नजर सामने गई तो दर्जन आंटी ने हम दोनों को गले लगते हुए देख लिया। अब वो मेरे पास आ रही थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये सब तुमने फातिमा के साथ क्यों किया। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने उनको सारी बात बता दी, मुझे कैसे ये सब करना पड़ा, क्योंकि फातिमा हसन से मोहब्बत करती थी और हसन के साथ मिलने गई थी और वो बोली उसकी शादी होने वाली है, लेकिन तुम अभी तक ये सब कर रहे हो, तुमने फातिमा के साथ ये सब क्यों किया। ये बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं उन्हें क्या बताऊं। मैंने उनको सारी बात बता दी थी कि मुझे कैसे ये सब करना पड़ा, क्योंकि वो हसन से मोहब्बत करती थी और हसन से मिलने गई थी। उसने हसन के साथ वो सब कुछ किया है और मुझे लगा कहीं हसन ने कोई कैमरा तो नहीं लगाया, वो फातिमा को अपने झांसे में ना फंसा रहा हो। इसी डर की वजह से मैंने फातिमा को कहा था कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और वहाँ जब मैंने उसे हसन के साथ वो सब करते देखा तो मेरे जज्बात जाग गए थे। मैं भी उसके साथ वही सब करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने फातिमा को इस जाल में गिरा दिया था ताकि मैं उसके साथ ये सब कर सकूं। मैंने आंटी से कहा था कि आंटी प्लीज आप किसी को भी मत बताना, मैं आपको फ्री कपड़े भी दूंगा। जब वो कहने लगी कि सिर्फ फ्री कपड़े देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें भी अब मेरे साथ वो सब करना होगा, उनकी बात का इशारा मैं समझकर बहुत ज्यादा घबरा गया था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। और आंटी के शोहर का इंतकाल तो बहुत पहले हो चुका था। मैं जानता था कि आंटी के जज्बात कितने ज्यादा हैं। उन पर तरस खाकर मैं तैयार हो गया था और फिर आंटी से कहा कि फातिमा की एक दफ़ा शादी हो जाए, उसके बाद वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर आऊँगा। यूँ उन्होंने मेरी बात मान ली थी और वो खुश हो गई थी। और यूँ फातिमा की शादी के फौरन बाद मुझे उनके पास जाना पड़ा था। मैं जैसे ही आंटी के घर गया वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था और उसके बाद मैंने आंटी के साथ वही सब कुछ किया, क्योंकि अब मुझे डर था कि कहीं वो मेरा ये पोल ना खोल दे। पर आंटी एक तजुर्बेकार औरत की तरह मुझे खुश करने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसका नतीजा ये निकला था कि अब मैं कभी कभार उनके पास चला जाता था। मैं उनके काम भी कर दिया करता था, जबकि बदले में वो मुझे वो सुकून देती थी जो सुकून मुझे कोई जवान औरत भी नहीं दे सकती थी। तो दोस्तों ये थी मेरी ज़िंदगी की छोटी सी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जुलाई की एक सुबह थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे कि बारिश शुरू हो गई और फिर लगातार मूसलाधार बारिश ने तूफानी रुख इख्तियार कर लिया, यहाँ तक कि सैलाब आ गया। ऐसा पहली बार हुआ था। हमने पहले से कोई हिफाजती तदबीर इख्तियार नहीं की थी। बाबा जान ऑफिस में थे, घर में अम्मी और छोटी बहन थी। हम 4 घंटे तक सैलाबी बारिश में भीगते रहे। आखिरकार बारिश थम गई, मगर अपने पीछे बहुत सी तबाहकारी छोड़ गई। देर तक भीगे रहने के सबब अम्मी की तबीयत खराब हुई और वो बिगड़ती चली गई। वो कमज़ोर थी। मामूली बुखार ने रफ्ता रफ्ता खतरनाक रूप धार लिया। हम हैरान और परेशान थे कि क्या करें। प्राइवेट डॉक्टरों को फीस की सूरत में काफ़ी रकम दे चुके थे। सबने अम्मी को सरकारी अस्पताल दाखिल करवाने का मशवरा दिया कि यही आसान तरीका दिखाई दे रहा था, मगर हालात संवरने की बजाय बिगड़ते गए। मुझे डॉक्टर बनने का बचपन से शौक था। डॉक्टर्स मेरे आइडियल थे। वो मुझे फरिश्ते नजर आते थे, मगर जब उन फरिश्तों से वास्ता पड़ा तो डॉक्टर बनने का ख्वाब टूट गया। जैसे सब लोग खराब नहीं होते, इसी तरह हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बदकिस्मती से जिन डॉक्टरों से हमारा वास्ता पड़ा वो फरिश्तों का रूप धारे हुए कसाई थे, और कसाई तो जानवरों को काटते हैं, मगर ये तो जिंदा इंसानों की खाल उतार देते हैं। अम्मी उनके सामने एक जिंदा लाश थी जिनको वो जिस तरह चाहे तोड़ मड़ोड़ दें। मुझे उस दिन डॉक्टरी के पेशे से ही नफरत हो गई। और फिर कुछ नर्सों का सलूक भी बिजली बनकर गिरा। माँ की हालत देखकर मेरा दिल बुरी तरह जख्मी हो चुका था। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की बेइतनाई और लापरवाही ने मुझे मजीद मायूस किया। जब अम्मी को अफाका ना हुआ तो नाचार एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया। छोटी बहन पर माँ की बीमारी और लोगों की बातों का इतना असर हुआ कि उसने बहकी बहकी बातें शुरू कर दी, मगर मैंने खुद को
کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ ماں کو سب سے زیادہ انتظار بھی شاہد کا تھا۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا جسے انہوں نے بڑی منتوں مرادوں سے پایا تھا۔ جن دنوں میں تیسری جماعت میں تھی شاہد پیدا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، جو دیکھتا رہ جاتا۔ ایک دن وہ اچانک بیمار ہو گیا اور بچنے کی امید نہ رہی۔ امی اور بابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑے قابل ڈاکٹروں کو دکھایا، سب نے یہی کہا کہ اسے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میرے والدین اس کی شفا یابی کی خاطر سجدے میں گر گئے۔ ان دنوں انہوں نے خوب خیرات بھی کی، مگر مرض سمجھ میں نہ آتا تھا۔ لوگ کہتے کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے، اس پر پڑھائی کرواؤ۔ غرض جو جیسا کہتا، یہ پریشان ماں باپ ویسا کرنے لگتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور میرا بھائی 1 سال کی بیماری کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ سب کہتے کہ یہ سوکھے کی بیماری ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، مگر پیدا کرنے والی ذات بڑی عظمت اور طاقت والی ہے۔ اس کی مہربانی سے اسے نئی زندگی مل گئی۔ امی نے 4 سال کی عمر میں اسے اسکول داخل کروا دیا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، ہمیشہ اول آتا۔ اس بات پر میرے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ باجی کی شادی کے دوران اس نے پیپرز دیے اور گریڈ میں پاس ہو گیا۔ بھائی کی کامیابی کی خوشی میں بابا جان نے سارے خاندان کی دعوت کی۔ ان دنوں باجی کی چھوٹی نند روشنا امریکہ سے آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لڑکیاں تک اس پر سے نظر نہ ہٹا پا رہی تھی، مگر وہ میرے بھائی پر فدا ہو گئی، جبکہ شاہد نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ روشنا نے باجی سے کہا، بھائی مجھے آپ کا بھائی بہت پسند آیا ہے، میں تعلیم مکمل کر لوں تو آپ مجھے بھابھی بنا لیں گی؟ باجی بولی، تم بھی مجھے بہت پسند ہو، جب تم تعلیم مکمل کر لو گی تو میں امی سے بات کروں گی، اور اس وقت تک شاہد بھی تعلیم مکمل کر لے گا۔ بے شک روشنا بھی میرے بھائی کو اچھی لگی تھی، لیکن بھائی کو تعلیم مکمل کرنی تھی۔ وہ واپس امریکہ چلی گئی تاکہ دونوں اپنی اپنی ڈگریاں لینے کے بعد نئی زندگی شروع کر سکیں۔ شاہد نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر لی تو اسے سعودی عرب میں جاب مل گئی اور وہ وہاں چلا گیا۔ اس نے وہاں محنت سے کام کیا، اس میں کوئی بری عادت نہ تھی۔ حالانکہ تنخواہ اچھی ملتی تھی، پھر بھی وہ خود پر بہت کم پیسے خرچ کرتا اور زیادہ رقم گھر بھجوا دیا کرتا۔ امی شدید بیمار پڑی تو ان کی خواہش تھی کہ بیٹا آ جائے۔ بھائی کو خط لکھ کر امی کی بیماری کا بتایا تو اس نے وطن واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بھی ہم سے ملنے کو بے چین تھا۔ اس نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں خریدی۔ ادھر امی اور ابو نے فیصلہ کر لیا کہ جب شاہد پاکستان آئے گا تو اس کی شادی روشنا سے کر دیں گے۔ انہی دنوں وہ بھی پاکستان آنے والی تھی۔ جس دن بھائی کے آنے کی اطلاع ملی، ہم بے حد خوش تھے۔ گھر کو صاف ستھرا کر کے سجایا۔ ہم بے حد خوشی اور شدت سے اس کے منتظر تھے، مگر کیا خبر تھی کہ وہ آئے گا تو زندہ نہیں۔ جب وہ شاپنگ کر کے واپس لوٹ رہا تھا، ایک کار نے اسے ٹکر مار دی اور وہیں دم توڑ گیا۔ یہ خبر باجی اور بہنوئی کو شاہد کے دوستوں نے دی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوست بہت رنجیدہ تھے اور سوچ رہے تھے کہ شاہد کے گھر والوں کو کیسے اطلاع کریں۔ شاہد نے انہی دوستوں کے ساتھ پاکستان آنا تھا۔ بہرحال باجی اور بہنوئی صاحب نے امی کو اس حادثے کی اطلاع نہ دی۔ جس روز میت آنے والی تھی، گھر والے انتظار میں تھے کہ شاہد آ رہا ہے، اور میری بہن اور بہنوئی اس سوچ میں تھے کہ ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ امی بار بار سوال کرتی، مجھے بتاؤ میرا بیٹا کتنے بجے پہنچے گا؟ مگر جانے کیوں بہن اور بہنوئی نے ہمیں آخری وقت تک یہ نہ بتایا کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ آ رہا ہے۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر باجی نے نئے کپڑے نہیں پہنے۔ ابو نے پھولوں کے سہرے خرید کر اپنے کمرے میں رکھ لیے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ بہنوئی ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے، تبھی دروازے پر گاڑی آ کر رکی، جسے میت گاڑی کہنا چاہیے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ بابا جان پھول لے کر باہر گئے، وہ ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک تابوت باہر نکالا گیا۔ والد اس منظر کو برداشت نہ کر سکے اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ تابوت گھر میں تخت پر رکھ دیا گیا تھا۔ ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ محلے کی عورتیں ہمیں سنبھال رہی تھی۔ بھائی شاہد بس چند لمحوں کو آیا تھا اور پھر واپس جا رہا تھا۔ ایسے منظر کو کون بھلا سکتا ہے؟ میت کے ساتھ اس کے دوست وہ سوٹ کیس بھی لائے تھے جس میں ہمارے لیے تحفے تھے۔ ڈاکٹروں نے امی کو 2 دن تک دوائیں دے کر سلاتے رہے۔ 3 دن بعد وہ حواس میں لوٹی۔ تب تک جس کا انتظار تھا وہ جا چکا تھا۔ وہ 1 ہفتہ بھی زندگی کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور ہمیں چھوڑ کر اپنے پیارے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ امی کی عادت تھی کہ وہ روز مجھے چائے بنانے کو کہتی تھی۔ میں اب بھی روزانہ مقررہ وقت پر چائے بناتی، 1 کپ اپنے لیے اور دوسرا اپنی امی کے لیے، اور چائے کے ساتھ آنسو بھی پیتی تھی۔
मेरी छोटी बहन का तो माँ और भाई के गम में दिमाग ही मतवाजन न रहा। बेनोई भी गुमसुम रहते थे। बाबा जान तो ऐसे नजर आते जैसे उनकी याददाश्त चली गई हो। रिश्तेदार एक एक करके चले गए, बस हम अकेले रह गए। काफी अरसे मेरे वालिद साहब फराश रहे, फिर हमारी खातिर अपनी शख्सियत का तिनका तिनका इकट्ठा करके खुद को दोबारा मुरत्तिब किया, मगर जख्म दिल न भर सका। आज इस वाक़ये को 30 बरस से ऊपर बीत गए हैं, मगर जब वो मंजर याद आता है तो दिमाग को झटका सा लगता है और यूं महसूस होता है जैसे अंदर से सब कुछ टूट फूट गया हो। कभी दिल माँ को पुकारता है और कभी भाई को आवाज देने लगता है। अगर कोई कहता कि उनकी माँ मर गई है, उनका भाई मर गया है, तब दिल करता है कि कानों में उंगलियां ठूंस लूं। उन लोगों से कैसे कहूं कि माँ और भाई जितना हमारे करीब पहले थे अब भी हैं। जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो जुदा होकर भी जुदा नहीं होते, हमारे दिल के अंदर रहते बसते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे मेरी माँ और भाई याद ना आते हों या मेरे ख्वाब में ना आते हों। मेरी दुआ है कि खुदा हर भाई और हर माँ को सलामत रखे, ख़ुसूसन गैर शादीशुदा लड़कियों को बेमां ना करे। छोटी बहन पूरी तरह सदमे के दायरे से ना निकल सकी, इसलिए उसका रिश्ता कहीं ना हो सका। फिर मैंने भी शादी ना करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर मैं घर बसा लेती तो मेरे बूढ़े वालिद और बेहोश बहन को कौन संभालता। बाबा जान हमेशा यही अफसोस किया करते थे कि राबिया अगर घर बसा लेती तो बहुत अच्छा होता। तब मैं जवाब देती, बाबा जान शाहिद तो चला गया जो आपके बुढ़ापे का सहारा था, अब मैं खुद को उसकी जगह समझती हूँ। जब तक वो जिंदा रहे मैं उनकी खिदमत करती रही। आखिरी दिनों में बीमार पड़ गए, मैं उनको एक छोटे बच्चे की तरह संभालती थी और छोटी बहन तो कभी कभी खाना खाना भी भूल जाती थी। उसको अपने हाथों से खिलाना पड़ता है, उसे नहलाना, कपड़े बदलवाना, ये सब मेरे फराइज में शामिल है। इसका इलाज भी करवाया है मगर वो सही ना हुई, इसी वजह से मैंने घर नहीं बसाया। दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो काम मेरे स्पर्द किए मैंने उन्हें बाखूबी निभाने की पूरी सही की ताकि खुदा मुझसे राजी हो। अब बहन के साथ जिंदगी के बाकी दिन भी इज्जत से गुजर जाएं, यही खुदा से दुआ करती हूँ। आगे क्या तकदीर में लिखा है ये तो ऊपर वाला ही जाने कि वही वसीला, वही रहीम व करीम है। जिसने पैदा किया है उसने अपने बंदों पर रहम करने का वादा किया है, बशर्त ये कि इंसान उसके अहकामात से रूगर्दानी ना करे।